A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So as I always ask to you all, so today also I am asking to you. I hope you all are fine and everybody is fine at home. I always suggest you to be positive in any adverse situation. Be focused on your studies. Whatever the studies you are doing, be focused toward it. Then make your proper timetable, time management and focus on each and every subjects. सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे and devote the time to each and every subject equally. If we talk about our today's class, so the topic which I am going to teach you about is the brain. It is a revision, children, and it is a revision of your chapter revision. Okay, it is a revision of your chapter, the basis of human behavior. In that chapter, you all have to study about the two bases of human behavior. The two bases of human behavior means there were two bases which you have to study. Means basically it was trying to say that for human behavior, the two basic things are responsible. One is biological and second one is socio-cultural. In terms of the biological basis of human behavior, in that terms, you all have to study about what is the biological factors, what is the biological things which are responsible for the human behavior. Like what are the things come under the biological? The parts of the brain, neurons, nervous system, hormones. So these are responsible for the person changes in the behavior. So children, we now have to discuss about, today I will going to discuss you about the brain. The brain. If we talk about this topic which I am going to discuss with you, and give you the description about the brain. So first of all, before starting about it, let us you all know that brain is a part of the central nervous system. Our mind is governed by the nervous system, and our nervous system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into two parts, the brain and the spinal cord. Okay children, again I am repeating, the central nervous system is divided into two parts, the brain and the spinal cord. So here I am discussing you about the brain. जब ब्रेन की बात होती है तो बच्चों it is a mastermind. Okay, other it is one of the organ in your body. ये भी एक तरह से organ है आपकी ये whole body का. And brain which is on the crown, which is on the head, so obviously it governs each and everything. It governs the whole your body parts. So brain is something considered to be the master of each and everything. It is that part of the brain, it is that part of your that organ of your body. Basically, it is only which command
others. यही है जो सभी को कमांड भी देता है. न्यूरॉन्स भी जो होते हैं, they receive the information from the sense organ and they send it to the brain. हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, what is the difference between brain and mind. So in that regarding children, I want to say to you that brain has a structure, brain has a location. उसका एक स्ट्रक्चर होता है. इट लुक्स लाइक अ वॉलनट. वॉलनट आप सभी ने देखा है, ठीक है, रिंकल्ड होते हैं. ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं. ओके, आपने वॉलनट देखा है? वॉलनट कैसा होता है? वॉलनट जब आप देखोगे, जो वॉलनट होता है वो पूरी तरह से जैसे सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन इज ऑल्सो. ओके, एंड व्हेन यू ओपन इट, आप जब उस वॉलनट को ओपन करते हो तो इनसाइड समथिंग सच काइंड ऑफ फिगर वाज देयर. तो आप देखते हो ये एक तरह से रिंकल्ड सरफेस होता है, ठीक है. तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक अ वॉलनट, ठीक है. एंड तो इट हैज़ अ स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ लोकेशन. ये हमारे हेड में एग्जिस्ट करता है, तो इट हैज़ अ लोकेशन. बट माइंड हैज़ नो स्ट्रक्चर. माइंड की स्टडी कर सकते हैं हम लोग. माइंड इज समथिंग रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेसेस, बट माइंड हैज़ नो स्ट्रक्चर. Mind has no particular location. We are unable to see the mind, but we are able to see the brain. अगर हमारे हेड में सर्जरी की जाए, so we are able to see the brain. And like a neurosurgeons जो होते हैं, वो basically जो सर्जरी करते हैं वो ब्रेन की ही सर्जरी करते हैं. They are master in that field. They expertise in that particular profession. So children, what I am trying to say that what is the difference between the mind and the brain? So mind has no location, mind has no structure. Mind does like we can't able to see the mind, we can't able to touch the mind. But brain is a part of your body. It is a part. It is an organ, and which is something considered as a master, and which command each and everything. And that what I am saying, that our neurons also collect the information and from the sensory organ and send it to the brain, and then brain only send the information to the motor organ, to the muscles, to the glands, and then we are able to perform. फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं. वी आर एबल टू बिहेव. सो ऑब्वियसली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So we studied that brain has a structure, brain has a location, brain we are able to see, we are able to touch. 1.2 billions, more than billion neurons are found in the brain, and around 2.5 around is the weight of the human brain. And the weight is differ from other species. Like human brain weight is more than any other species, and it is more developed also, and it is more complex also.
Like for example, which I am trying to make you understand that in comparison to the other species of the brain, if we have seen, like researcher has seen the brain of the rat and other species like chimpanzees and monkey brain is somewhat find similar to the human brain. But the other species brain like rat or the dog, they are very much different, and they are not weighing very weight is also not so much, and they are not such complex as human brain. Human brain बहुत ही complex माना गया है, and it involves so many things. बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. आप देखते हो कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसका शेप जो होता है वॉलनट की तरह होता है, तो सारे सरफेस जो होते हैं रिंकल्ड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें. ठीक है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ द ब्रेन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेन? Our brain, human brain, is divided into three categories. First is hindbrain, then is the midbrain, and then is the forebrain. Okay, this is the categorization of our brain. Hindbrain, midbrain and forebrain. ठीक है. ये यूजली हम लोग बैक से फ्रंट में आए हैं. हाइंड ब्रेन पीछे में होता है, फिर मिड ब्रेन होता है. मीन्स हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है. ठीक है. अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है. ठीक है, इस तरीके से. तो ये जो हिस्सा है ये. So if you can see, this is like a structure of the human brain. In this structure you can find out, children, the maximum part of the brain is covered by the forebrain. ठीक है. मैक्सिमम पार्ट मीन्स मैक्सिमम जो पार्ट होता है ब्रेन का वो फोरब्रेन का पार्ट होता है. मिड ब्रेन आपका कुछ इस एरिया में आएगा, और हाइंड ब्रेन ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड में कवर करता है. हमारे ब्रेन का जो लास्ट में पार्ट हिस्सा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से टच होते हुए स्पाइनल कॉर्ड एक टेल एंड. दैट इज़ वाई हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि दोनों ही जुड़े हुए हैं. तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेन. So I have told you these 3 categorization. Our brain is divided into 3 parts: hindbrain, midbrain and forebrain. One by one we will discuss about this one. If you see this structure, if you see this one, this is known as the little brain, और इसे हम लोग big brain कहते हैं. इस पार्ट को लिटिल ब्रेन कहते हैं, एंड इट इज a part of cerebellum. Cerebellum is a part of the hind brain. हाइंड ब्रेन का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से आपका हाइंड ब्रेन होने लगता है. आप समझ सकते हैं यहाँ आपका मिड ब्रेन है, और ये होल एरिया आपका जो कवर है ये फोर ब्रेन का है. तो हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं. Hind brain is also divided into 3 parts. 3 parts इसके भी हैं. What are the 3 parts? First is medulla. Second is pons. Third is cerebellum. Medulla oblongata, pons, cerebellum.
ठीक है, ये आपका ब्रेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, फर्स्ट इज लास्ट में जो सेरेब्लम वर्ड है, ये मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि ये सेरेब्लम होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन, इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये भी जैसे लाइक बिग ब्रेन में वॉलनट की तरह होता है, स्ट्रक्चर होता है, लाइक रिंकल्ड सरफेस होते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, ऐसे रिंकल्ड सरफेस होते हैं। ठीक है, ये एकदम जस्ट पीछे में यहाँ पे आपके होता है द बैक में। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर मूवमेंट। The most important point which you all have to keep it in mind about each and every structure is that what is the part of the brain and where that structure is located and what is its function. ये दो important point आप सभी के जानने के लिए important है for your examination. So first one, where it is located, it is in the part of the hind brain. It is just near to the spinal cord. And what is its function? Its function is in motor coordination. मोटर मूवमेंट, जो आप मोटर मूवमेंट होता है आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन या लेग के कोऑर्डिनेशन, मोटर मूवमेंट के लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ एनी डैमेज हैपन इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, लाइक आपने एक डिजीज सुना होगा विच इज अ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन एक डिजीज है विच इज रिलेटेड टू द मोटर प्रॉब्लम। तो जिनका सेरेब्लम में अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दे कैन बी ससेप्टेबल टू द डिजीज विच इज द पार्किंसन डिजीज। तो ये होने का चांसेस उनका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है पॉन्स। ये जो एरिया आप देख रहे हो, जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये पॉन्स का एरिया होता है। ठीक है, पॉन्स जो होता है, लेट मी राइट इट ऑल्सो हियर, इट इज सेरेबेलम, दिस इज पॉन्स। पॉन्स जो होते हैं वो स्लीप मैकेनिज्म होते हैं, स्लीप मैकेनिज्म। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रीम्स। जो सपने आप देखते हो, ड्रीम्स देखते हो, तो उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस पार्ट में कहीं से किसी भी तरह का कोई डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये देखा रहता है कि पर्सन इज अनएबल टू स्लीप, स्लीपिंग प्रॉब्लम या अ काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर अराइजेज इन द पर्सन। इसके बाद है मेडुला। मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेडुला को वाइटल सेंटर भी कहा गया है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। इट इज अ वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो फंक्शन है वही तो पर्सन को इट्स फंक्शन मेक द पर्सन लिविंग। बेसिकली इसके फंक्शन होते हैं, इट कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये सारे काम ब्रीथिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर रेगुलेशन, उनके लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और ये आपका इस एरिया में आएगा, इसी एरिया में आएगा, जस्ट अबव द पॉन्स। पॉन्स से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो मेडुला वाइटल सेंटर कहलाता है और मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड एवरीथिंग। ना तो हाइंड ब्रेन हमने समझ लिया, सबके फंक्शन हमने समझ लिए, मेडुला क्या होता है, पॉन्स क्या होता है और सेरेब्रम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज अ मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है, मिड की बात हो रही है ना बेटा, मिड, तो यानी ये ऑब्वियसली ब्रेन की आपके मिड पार्ट में आ रहा है, ठीक है। इसकी कोई भी डिविजन्स नहीं है, इसके कोई भी पार्ट्स नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि एक्टिवेट करता है, RAS, इसका फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये रेस्पॉन्सिबल होता है अराउजल के लिए। इसका जो फंक्शन है, इट इज जस्ट अपोजिट टू दी पॉन्स, जहाँ पॉन्स जो है वो स्लीप मैकेनिज्म है, और RAS यानी नाम में ही पता चल रहा होता है एक्टिवेटिंग, ये बॉडी को एक्टिवेट करता है, माइंड को एक्टिवेट करता है, इट इज फॉर दी अराउजल। अगर इसमें किसी भी तरीके का लाइक इफ एनी काइंड ऑफ डैमेज हैपन, किसी भी तरीके का कोई डैमेज होता है, तो इट में लीड टू अ पर्सन लाइक फॉर स्लीप फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी मंथ्स, ये भी होता है। जस्ट लाइक अ पर्सन विल बी इन अ कोमा स्टेज, सो दैट्स वाई दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस अबाउट द forebrain. Forebrain, which is a main important part of the brain because it covers the maximum area. Maximum area cover कर रहा है forebrain. Forebrain जो है वो 4 parts में divided है. First is thalamus. दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ओके। And fourth one is the most important, is the cerebrum. Okay, it is not shown to you. Once again. The fourth part is the cerebrum. Here I want to mention that there is a difference between cerebrum and cerebellum. Don't consider it the same thing. दोनों को एक जैसा नहीं समझिएगा। सेरेब्रम जहाँ लिटिल ब्रेन है, सेरेब्रम जो है आपका मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, तो ये बिग ब्रेन भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है। इधर आते हैं, ये 4 मेन पार्ट्स हो गए फॉर ब्रेन के। सबसे पहला है थैलेमस। थैलेमस आपका समझ लीजिए यहाँ पे होता है थैलेमस, ये एरिया आप कह सकते हैं थैलेमस का होता है। थैलेमस का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही जो ब्रेन के पार्ट है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये दोनों ही ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स भी सिक्रीट्स करते हैं, एंड दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। एंड सबसे पहले थैलेमस की अगर बात करें तो थैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों के लिए थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है। हाइपोथैलेमस एक तरह से जस्ट बिलो दी थैलेमस होता है और ये एक एज शेप्ड की तरह होता है। इसका जो शेप होता है एकदम एक एज शेप्ड होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। आपके इंटरनल बैलेंस को ये मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए दिस इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द forebrain इज द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम पढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम भी जो है आपका, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लिम्बिक सिस्टम ये इट इज अ पार्ट ऑफ द forebrain, ठीक है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। व्हाट आर द पार्ट्स? फर्स्ट इज हिप्पोकैम्पस and another is amygdala. Hippocampus and amygdala. हिप्पोकैम्पस वो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी। मेमोरी यानी जो आप चीजें याद रखते हो ना, तो वो हिप्पोकैम्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस पार्ट में कहीं से डैमेज हो रहा है, लाइक डैमेज कैसे होते हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, आप सर के बल मीन्स हेड में किसी भी तरह की इंजरी आई, तो नाउ व्हाट हैपन व्हेन एनी काइंड ऑफ इंजरी इज हैपनिंग, सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, लाइक इफ द हिप्पोकैम्पस इज अफेक्टेड, इफ इट इज हैपन कि आपका अगर हिप्पोकैम्पस अफेक्ट हो रहा है, तो नाउ your memory will intact, like, or you maybe it happens some part of the memory is lost, कुछ पार्ट आपकी मेमोरी का जो है वो लॉस्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। कुछ पार्ट आपको याद रहे, या कंप्लीट मेमोरी लॉस भी हो सकता है, एमनेशिया हो सकता है। So means these are some of the cases, these are some of the things which can be happen. Now the second part of the limbic system is amygdala. Amygdala is responsible for the emotion. ये इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, whether it is positive, whether it is negative. So amygdala is responsible for that emotion. Okay. Now, so we have done with the thalamus, hypothalamus, limbic system. Now I am going to discuss with you about the cerebrum. हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? अब cerebrum, which is also a part of the forebrain. cerebrum आपका ये पूरा है, ठीक है। So cerebrum को एक और भी चीज कहा जाता है, cerebrum is also known as cerebral cortex. सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नेम है, और इससे हम लोग आप बिग ब्रेन भी कह सकते हो, एंड सेरिबेलम इज नोन एज द लिटिल ब्रेन, ठीक है। हमारा सेरिब्रम जो है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एंड which is known as the cerebral hemisphere. Okay, so सबसे पहले cerebrum को cerebral cortex कहते हैं, ये समझ में आया। ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, आप कह सकते हैं इस तरीके से फिगर बनता है, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर हैं, ठीक है, उसमें ये डिवाइडेड होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो
चीज़ से ये दोनों हेमिस्फीयर जुड़े रहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग सर्जरी करेंगे अपने ब्रेन का, तो आप देखोगे कि एक लाइन होगी जिससे ये दो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो अटैच है, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और दोनों का ही रोल जस्ट अपोजिट होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होते हैं हमारे राइट पोर्शन को गवर्न करते हैं, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को गवर्न करते हैं, और राइट हेमिस्फीयर जो है हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को गवर्न करते हैं। तो जस्ट अपोजिट वर्क होता है, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अच्छा, ये देखा गया है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक एनालिटिकल प्रॉब्लम्स और एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग ये करता है, और राइट हेमिस्फीयर जो हमारा होता है वो बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, जो आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट हेमिस्फीयर की हैं, और टेक्निकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का पार्ट है। नाउ हमारा सेरिब्रम जो है वो कुछ लोब्स में भी डिवाइडेड है, ठीक है। उस लोब्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सेरिब्रम जो है वो लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सेरिब्रम ये लोब्स में भी डिवाइडेड है। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ब्रेन का। यहाँ हम लोग पूरी तरह से ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। लोब्स आपने साइंस में भी पढ़ा होगा 10th में। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है, पैराइटल, ठीक है, और ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये 4 लोब्स में हमारा सेरिब्रम जो है वो डिवाइडेड है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, ठीक है। फ्रंटल यानी आगे का है ये पार्ट। ये लोग पूरी तरह से कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, ये सारे काम फ्रंटल लोब करता है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सी वर्ड बना है आई से, तो ये क्या करता है, ये विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये आपके एकदम पीछे में होता है ऑक्सीपिटल लोब, पीछे में, बैक। टेम्पोरल लोब जो है ये ईयर्स के पास होते हैं, टेम्पल के पास होते हैं, तो ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और पैराइटल लोब इज इन द बिटवीन, जिनका काम होता है इन सारे लोब्स या सारे एक तरह से ही रिले सेंटर होता है, सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके सबको प्रॉपर प्लेसेस पे सेंड करना। तो सेरिब्रम इन 4 लोब्स में डिवाइडेड है, ओके। सो अगर ये ब्रेन का डायग्राम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये एरिया आपका फ्रंटल लोब हो गया, यहाँ पे ईयर्स होते हैं तो ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया, ये एरिया आपका पैराइटल है, और ये जो बैक का एरिया है ये आपका ऑक्सीपिटल है। So I hope children today from this video you all studied about the parts of the human brain. Parts of the human brain. Thank you so much for carefully observing this video.